پتا ہے کہ گلگت بلتستان نے کب آزادی لی تھی ہندوستان سے؟ 1948 میں۔ 1948 میں آزادی لی تھی. تو آزادی کے وقت میں کیا تبدیلیاں ہوئی اور اب آزادی لے کر خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ افسوس ہو رہا ہے افسوس کس بات پہ ہو رہا کہ مجھے اپنی اور سارے معاشرے کی جو ہے نا ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم نے یہاں پہ جہاد جو ہے نا ایسی ہی جہاد نہیں کرنا ہے گن اٹھا کے فور ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے لازمی نہیں ہے کہ لازمی مولوی صاحب بات تو سنیں. ایک منٹ ایک منٹ چھوڑیں جی چھوڑیں. نہیں نہیں کیا ہو گیا؟ کیا انڈیا کے ادھر بارڈر سے ادھر ہم کیا بات ہے؟ ایک منٹ مولوی صاحب میں صحیح سوال کر رہا ہوں. ایک منٹ. مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہمارا ذمہ ہے کہ نہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہے؟ جی الحمد للہ. بیسیکلی بات کرنے کا پرپس آپ سے یہ ہے کہ کس قسم کی تعلیم پڑھ رہے ہیں آپ. اگر میں بات کروں دنیائی حساب سے تو تعلیم کس طرح کی مل رہی ہے؟ الحمد للہ یہاں پہ جو مدرسہ ہے ہمارا یہاں پہ تو دعوت اسلامی کا جامعہ بھی ہے یہاں پہ اور مدرسہ بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ان کو دی جا رہی ہے یہاں پہ. دینی تعلیم سوری کٹ کر رہا ہوں. دینی تعلیم میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ایک سوال آپ سے میں پوچھوں گا. پہلا سوال یہ ہوگا کہ دینی جہاد ضروری ہے یا پھر ٹیکنالوجی ضروری ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جہاد اور جہاد کی تو وہ چیزیں ہو نہیں رہی ہیں. یہاں پہ پہلے بچوں کو جب ہم تربیت دیں گے تو انہی سے یہ بچے جو ہے نا ٹیکنالوجیز میں آ جائیں. دور جو ہے اس وقت جہاد کا نہیں ہے ٹیکنالوجی کا ہے. ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے جو ہے نا ہم آگے لیڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا جو مین فوکس ہے ہم بچوں کو جو یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں وہ اخلاقیات کے اوپر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دعوت اسلامی کا مین پرپز یہی ہے کہ مجھے اپنی اور سارے معاشرے کی جو ہے نا ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم نے یہاں پہ جہاد جو ہے نا ایسے ہی جہاد نہیں کرنا ہے گن اٹھا کے. ہم نے یہاں پہ اصلاح کے طور پہ جو ہے نا ان کی اصلاح کرنی ہے. ان کو ہم نے یہاں پہ جو جہاد البن نفس کرنا. جہاد بن نفس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد بچوں کو وہ ہم نے تربیت دینی ہے تاکہ کل وہ جب معاشرے میں جائیں تو وہ ایک اچھے سٹیزن کی طرف جائیں تاکہ کوئی ان کو یہ نہ کہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا جو بندہ آیا ہے یہ کوئی دہشت گرد ہے. جس طریقے سے لوگ پہلے جو ہے نا جن کے اوپر بلیمز آ رہے ہیں اس طرح کا وہ نہیں ہے. یہاں پہ بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں پہ دینی تربیت بھی ان کی دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ دنیاوی تربیت بھی دی جا رہی ہے. صحیح ہو گیا. میں قاری صاحب کی طرف چلوں گا اگلے کی طرف. سر مجھے بتائیے گا کہ جہاد ضروری ہے یا پھر دنیائی تعلیم جس کے اوپر ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر پوری دنیا انحصار کر رہی ہے. آج اگر ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں ایز اے مدرسہ اسٹوڈنٹ ایز اے دینی تعلیم لینے والا اسٹوڈنٹ آج کل کی دنیا ٹائم کے اندر زیادہ آگے ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتے کہ جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہو جنہوں نے ٹیکنالوجی میں کوئی ہاتھ دیا ہو. مین پرپس یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم مدرسے کی تعلیم اسلامی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ٹیکنالوجی کی تعلیم دینا کتنا ضروری ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور دعوت اسلامی کا الحمدللہ دنیا بھر میں جامعات المدینہ چل رہے ہیں جس میں دین کے ساتھ دنیا بھی سکھائی جاتی ہے. اور الحمدللہ یہاں پہ جو ہمارا مدارس ہے جو مدرسہ چل رہا ہے فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ حفظ بھی کی بھی کلاسیں ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ جو ہے ہمارے اساتذہ ہیں جو بچوں کی جو ہے دنیاوی تعلیم دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی بھی تربیت کرتے ہیں الحمدللہ. ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جامعۃ المدینہ میں لینگویج کورسز بھی ہوتے ہیں کمپیوٹر کورسز بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں آگے جو ہے وہ ترقی کر سکے. سر آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کی ہماری سچویشن ہے آج کل کے گلگت بلتستان کی دنیا سے بھی آگاہ ہوں گے دنیا کے تعلیمی نظام سے بھی. آپ انڈیا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ انڈیا کے مدرسوں کے بارے میں تعلیمی نظام کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اپنا کیا کرائٹیریا ہے. دیکھیں بحیثیت ایک مسلمان مجھ پر کیا ذمہ داریاں میں نے وہ پہلے دیکھنی ہے پھر دیگر کو میں دیکھوں گا. کیونکہ جو قرآن پاک میں جو حدیث پاک میں ہمیں احکامات ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی بخشش کے لیے کوشش کرنی ہے اپنے والدین کی تمام مسلمانوں کی. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو سب سے پہلے مجھے پہچاننا کہ مجھ پر اللہ کے کیا احکامات ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ہم جدید تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کو ہم ذریعہ بنائیں گے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں اسلام دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا لیکن پریفرنس آپ دیں گے اپنے دین کو کیونکہ آخرت میں دنیا کی ڈگریاں کام نہیں آنی کہ آپ نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے آپ نے بڑی بڑی ڈگری لی ہے تو آپ کو جنت مل جائے گی. نہیں, ایکوریٹ چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جہنم سے خود کو بچاؤ اپنے خاندان کو بچاؤ. تو اس کے لیے ہم اردو سیکھیں انگلش سیکھیں میتھمیٹکس ہے فزکس بایولوجی وغیرہ ایٹسٹرا جو کچھ بھی ہیں یہ علوم سیکھ کے ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہم دنیا میں ترقی کریں گے.
तरक्की ये नहीं है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, टेक्नोलॉजी में आप हाई लेवल पे चले गए, आपने बहुत जदीद हथियार बना लिए। टेक्नोलॉजी भी आजकल के टाइम के अंदर, सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, उतना ही ज़रूरी नहीं है कि जितना को आप दीनी तालीम आजकल हासिल करते हैं हम। क्यों भला? अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो दुनिया की आज सुपर पावर है अमेरिका। अमेरिका, हम कहते हैं कि अमेरिका की साजिश हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि इंडिया की साजिश अगर पाकिस्तान के अंदर मुर्गी भी मर जाए या अंडा भी टूट जाए, तो अब आपको नहीं लगता कि हमें इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि वो दुनिया कहे कि भाई ये पाकिस्तान की साजिश है, ये फलानी मुल्क की साजिश है, पाकिस्तान इस किस्म का इतना स्ट्रांग है, ये साजिश करता है। क्या कहना चाहिए? मैं इस बात के लिए आपके पास आया हूँ ताकि मुझे इस सवाल का जवाब मिल सके। देखें, बहैसियत एक मुसलमान तो मुझे जो पूछा जाना है मैं उसकी तैयारी कर रही है ना। जो मुझे एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है मैंने उसके मुताबिक उसको हल करना है। मुझे नहीं पूछा जाना कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि इस बात को तो गैर मुस्लिम भी मानते हैं कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है। जिहाद है तो वो उससे चाहिए पहले हमने अपनी बख्शिश अपने की तैयारी धर्म की में कोशिश करनी है जिहाद ना। है इन लोगों का, देखें, आप वही टेक्नोलॉजी इनका की सब बात कुछ कर लें, आप टेक्नोलॉजी है, जदीद सब तालीम कुछ की बात कर लें, बेसिक हमारी बुनियाद दीन ही रहेगा। हम इस्लाम के अंदर अंदर रह के जितनी मर्जी तरक्की कर लें बिल्कुल अच्छा। इजाज़त है, इसमें कोई मना नहीं है। इस्लाम, मैं भी वही बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लाम पर ज़िंदगी जीना मेरे लिए, आपके लिए, हर बंदे के लिए यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के, विदाउट टेक्नोलॉजी के क्या हम दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं? जिस किस्म के आजकल के टेक्नोलॉजी का दौर हो चुका है, जिस किस्म की टेक्नोलॉजी आ चुकी है दुनिया के अंदर। मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इसको हासिल करना बिल्कुल मना नहीं है, आप हासिल करें, बिल्कुल हासिल करें। लेकिन ये याद रखें कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का दी एंड होता है ना, साइंस जहाँ पे ख़त्म होती है, वहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सामने खड़ी होती है। आज से कई सौ साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्खी जब गिरती है तो अपना जरासीम वाला पर गिराती है। आज साइंस वो साबित कर रही है। तो हम सुन्नत के मुताबिक चलते जाएं, जितनी मर्जी तरक्की करें, टेक्नोलॉजी को आम करें, बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई मना नहीं है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। अच्छा सर, जो आप का पूरा मैं ये समझ गया हूँ कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी टेक्नोलॉजी को के साथ ही चल रही है। इस वक्त दावत इस्लामी अगर तबलीग का काम कर रही है तो उसका एक टूल दावत इस्लामी के पास टेक्नोलॉजी का ही है। दावत इस्लामी ने अब तक 82 से ज़ायद जो है ना एप्लीकेशंस बनाए हैं। अब वही एप्लीकेशन देखें, टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि इस दौर में जो है ना आप शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लो, ठीक है कि नहीं है? शॉर्ट टाइम आप देखें, आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं और सेकंडों में आपका ये वीडियो वायरल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो दावत इस्लामी का भी ये है कि टेक्नोलॉजी को भी सामने रखा हुआ। टेक्नोलॉजी इस वक्त जो है ना मेन हमारे पास टूल वही है जिसके थ्रू हम तबलीग भी कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम बच्चों की तरबियत भी कर रहे हैं और जिसके थ्रू हम जो है ना पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम भी पहुँचा रहे हैं। आप मदरसे के टीचर्स हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि सवाल मेरा इसलिए है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग समझते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है मुसलमानों पर, बहुत ज़्यादा जुल्म होता है कि मदरसे में पढ़ाया नहीं जाता। मेरे इंटरेक्शन होता है, जिस तरह की आपने एप्लीकेशन की बात की, तो वहाँ पर भी मुसलमान है, तो आप अपनी क्या राय रखते हैं? वाकई में ही वहाँ पर जुल्म होता है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जाता, वहाँ पर मदरसों में स्टूडेंट को तालीम हासिल करनी नहीं दी जाती? इसके बारे में क्या परस्पेक्टिव है? इसके बारे में दावत इस्लामी का ये दो टोक एक मौक़िफ़ है कि दावत इस्लामी गैर सियासी तहरीक है। जो दूसरे ममालिक हैं उनका अपना एक वो है, हम दूसरे ममालिक के उनके अंदरूनी बैरूनी उस पर इंटरफेयर नहीं हो सकते हैं। हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया के अंदर भी काम कर रही है। ये नहीं है कि सिर्फ जो है ना पाकिस्तान में। ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का काम इंडिया में हो रहा है। पाकिस्तान से ज़्यादा काम इंडिया में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, दूसरे ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वहाँ पर हो रहा है तो आपको ये भी इन्फॉर्मेशन होगी ना कि वहाँ पर कैसे हो रहा है, वहाँ पर कोई रोक टोक तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के काम में कहीं भी रोक टोक नहीं है। यहाँ पर जो बातें होती हैं कि इंडिया के अंदर बहुत जुल्म होता है, रोक टोक होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके काम में रोक टोक हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम में। आप देखें, ये तो फैलाई हुई बातें हैं ना कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये, मुसलमानों के ऊपर जो है ना यही एक मीडिया है जिसके थ्रू जो है ना एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। इंडिया के अंदर मुस्लिम्स नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना मुस्लिम्स हैं। आप फ़लस्तीन को देख लें, वहाँ पे भी मुस्लिम है, चेचेनिया में देखें, वहाँ पे भी मुस्लिम। मजालिम हर तरफ हो रहे हैं, मजालिम हर तरफ हो रहे हैं, ठीक है नहीं है? लाजमी नहीं है कि लाजमी। एक मिनट छोड़े जी, छोड़े। क्या हो गया? क्या इंडिया के इधर बॉर्डर से इधर, बॉर्डर से उधर, हम क्या क्या बात है? एक मिनट, मौलवी साहब मैं सही सवाल कर रहा हूँ। एक मिनट, मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों का हमारा जिम्मा है कि नहीं? हमारा जिम्मा है कि नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को बख्शाना? आप अगर आपके जितने मर्जी अच्छे मुसलमान हुए, अगर आपने मुझे दावत नहीं तो आपकी नमाज ही कबूल नहीं है, आप इस बात को मानते हैं? आपके पास आज तक दावत नहीं आई? नहीं। आपके पास आज तक दावत नहीं आई? मैं वही दावत, मैं मेरे नबी का सुन्नत क्या थी, मेरे नबी का अखलाक क्या था? आप मेरे नबी का अखलाक क्या था? मेरे नबी का अखलाक क्या था? आप किस तरह से मेरे साथ
बात मेरे कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई देखें, आपको मेरे प्यारे नबी के इखलाक जानना है, आप दावत इस्लामी के पास आ जाएं। आपको प्यारे वहीं नबी पे की आयो, पूरी सूरत- मैं वहीं पे आया हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मेरी बात काट दी। सुने, आप मुझे सुने ना, आप देखें ये चीज़ें, दावत इस्लामी का ये काम नहीं है कि इंतशार फैलाना। आज तक 42 साल जो हुए दावत इस्लामी को, अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मोहब्बत के साथ कभी किसी इस तरह के जो है ना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुई। आप जिस तरह इंडिया की बात कर रहे हैं ना, बार बार इंडिया को फोकस कर रहे हैं, देखें इंडिया के साथ हमारा कोई लेना देना, इंडिया में मुस्लिम भी पाए जाते, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया में वहां काम पर कर- भाई मैं इसलिए आपसे इंडिया की बात कर रहा हूँ भाई, मेरे तो इधर आ जाओ थोड़ा सा, थोड़ा इधर आ जाओ ना, और थोड़ा इधर आ जाओ। इंडिया के नाम पर आप आग बगोला क्यों हो जाते हैं? इंडिया के आग नाम बगोला- पे सामने देखिए, मैं नहीं नहीं इधर kindly- इधर kindly नहीं सामने नहीं नहीं इधर जी, जी, बैठे। इंडिया के नाम पे हम आग बगोला नहीं तो फिर देखें। मैं अब बात मैं वहां पर भी आपको- मुसलमान है मैं मेरी आप- जान में, इसलिए ओ बात मेरे कर रहा हूं। आप बात करो सर। अपने अपने मुल्क के मुसलमानों की फिक्र कर लें, अपने खानदान की फिक्र कर लें, मुल्क के बाहर फिर जाइएगा। सही हो गया। पहले अपनी फिक्र करें, अपने खानदान की, अपने मुल्क की। मेरा एक मिनट इस बात को साफ कर लेते हैं। थोड़ा इस तरफ आ जाए। नहीं बात को साफ होने दे मौलवी साहब। एक मिनट रुक जाए एक मिनट रुक तो जाओ। सुने ना, हाँ जी आप बात सुने ना, देखें आप जिस तरीके से जो है ना आप स्टार ले रहे हैं, आप उसी को एंड की तरफ लेके जाते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? रियाजुल्लाह बेग, करते क्या है? दुकानदारी। जबरदस्त हो गया। कैसे हालात है, कैसे गुजारा हो रहा, सही हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं, इस वक्त हालात जो है बहुत ख़राब है, क्यों हालात क्यों खराब? क्योंकि महंगाई की वजह से लोग जो है ख़रीदारी के लिए नहीं आते, क्योंकि कस्टमर जो है का जीना महाल हो गया है। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान ने कब आज़ादी ली थी हिंदुस्तान से? 1948 में। 1948 में आज़ादी ली थी। तो आज़ादी के वक्त में क्या तब्दीलियाँ हुई और अब आज़ादी लेकर खुश हैं कि नहीं खुश मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बस क्या कह सकते हैं कि अफसोस हो रहा है, अफसोस किस बात पे? क्योंकि यहाँ पे आज़ादी इसलिए ली थी हमारे बाप दादू ने कि यहाँ पे आसान आसाइशें मिलने जाएंगी, सुकून से रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की हालत आपको पता है, ना यहाँ पे इंसाफ है, ना कोई कुछ सिक्योरिटी है, न यहाँ पे कोई गुर्बत में जी रहे हैं। आज़ादी लेके खुश नहीं है इंडायरेक्टली? नहीं, खुश तो है, लेकिन फिर भी ये है कि जहाँ पे मुझे जो सहूलतें मिलने चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। आपको अगर मैं बात करूँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इस टाइम जो कश्मीर के पार्ट है, गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर के पार्ट में ही आता है, तो कश्मीर को आपको लगता है जो कश्मीरी पाकिस्तान के पास है उनको उनका हकूक मिल रहे हैं उनको? हाँ, उनको अपना हुकूक मिलाना, उनका अपना वज़ीर-ए-आज़म है, उनका अपना आइन है, वो अपना वो सारा कुछ चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि बस एक सेटअप दिया हुआ है, वो सारा निज़ाम जो है वो चीफ सेक्रेटरी चला रहा है। अगर उसके हुक्म पर हो गया फिर पूरा असम्बली फारिग है। क्या पाकिस्तानी जो कश्मीरी, जो कि अभी गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जहाद को या फिर टेक्नोलॉजी को? यहाँ पे ज़्यादा जहाद का इतना वो नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं। सही हो गया। तो क्या समझते हैं आपके अभी हम देखते हैं कि जिससे हम अलग हुए थे, मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ, हम उससे अलग हुए थे। अगर आपकी बात देखेंगे, आप स्टैटिस्टिक देखेंगे तो जो इंडिया है वो दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत बन चुका है। क्या सीखने को मिलता है हमें उनसे? बस ये है कि वो करप्टेड नहीं है, वो अपने आप से मुखलिस है। यहाँ पे नहीं है, जो भी आता है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है, वो अपने ज़ात के साथ मुखलिस है। इस वजह से ही अवाम पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत खूबसूरत एरिया है और यहाँ पर बिजली भी खुद बनती है, पन बिजली बनाते हैं। अगर आप बात करेंगे पंजाब वाली साइड पे तो वहाँ पर महंगे तरीन जो फ्यूल है वो यूज़ होकर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यहाँ पर बिजली फ्री होने के बाद भी आपको पूरी मिल रही है? यहाँ पे दिन को 1.5 घंटे मिलती है, शाम को 1.5 घंटे मिलती है, टोटल 3 घंटे बस। बिजली मिलती है। और 21 कहने को घंटे रोज पाकिस्तान चलती है। इसमें बिजली का बिल जम्मू कितने कश्मीर में यूनिट मिल रहा बिजली है? बन बिजली रही और है बिल कितना आता है पाकिस्तान आपको? 3 महीने 4 फिर भी महीने 1.5 या 1 घंटे महीने का? मिलती है। 1 महीने का तकरीबन आ जाता है 200-300 रुपये आ जाता है। बताएं। इतना ज़्यादा महंगा, फिर भी पानी की बनती बिजली का इतना बिल नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो कि जम्मू कश्मीर है, हम भी इंडिया से अलग हुए, जम्मू कश्मीर जो इंडिया के कब्जे में इस टाइम, जो इंडिया के पास कश्मीर है, पता वहाँ पर कितने का यूनिट मिल रहा है बिजली? उसका नहीं पता। 2 रुपये का यूनिट मिल रहा है और हमें यहाँ पर कितने का देना है? 27 रुपये यूनिट। यहाँ पे तो करीबन 6 रुपये 7 रुपये यूनिट है। हाँ, सही हो गया। कश्मीर के अंदर 27 रुपये यूनिट मिल रहे हैं। कश्मीर के अंदर उसका नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे अपना पानी है, यहाँ पे हर चीज़ का अपना फैसिलिटीज़ है। अगर आप फ्री अगर आपको महंगाई बिजली पे कर दें, लेकिन बिजली तो मुयसर होनी चाहिए। 48 घंटों के अंदर, 24 घंटे के अंदर सिर्फ 3 घंटे बिजली देना, ये इंसानियत तो नहीं ना लग रही? बस यही है ना, बस ये है कि अब आवाज़ नहीं उठाते? आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या करे, आगे वो सारे स्पेशल लाइनें जो है हाई लेवल के उनके पास है।
एक आप प्योर एक अच्छे गिलगिती होने के बाइस आप इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं? कैसा मुल्क है वो? अलग होने के बाद क्या फील कर रहे हैं? होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था अलग? आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया। हाँ, ये तो अलग होना है कि एक ऐसा था ना, इनका कायज़म का ख्वाब था कि यहाँ पे मुसलमान अपनी मर्ज़ी से जी लें, अपनी मर्ज़ी से जो भी इबादत हैं अपनी मर्ज़ी से खुले अपने दिल से कर लें। अब इंडिया में जो मुसलमानों के हालात है वहाँ पे देख लें तो फिर हम खुश होते हैं कि यार हम उनसे अलग हो गए हैं।